Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashta Sarsi with your Vedanta chemistry master teacher. I hope सब मस्त होंगे स्वस्थ होंगे. So आज हम लोग करने वाले हैं top 10 assertion reason based questions of acid bases and salts. So भाइयों बहनों दिल थाम के बैठिए because these are the top questions which have been taken out after a lot of research. तो हो सकता है आज जो हम लोग क्वेश्चंस करें वो as it is आपके पेपर में उठ के आ जाए. Questions का level is really good. So sit tight, sit with your pen and paper, आराम से solve करना सोच समझ के and try to gain as many marks as you can. 10 out of 10 का रखिए इसको. चलो तो एक काम करते हैं, चैलेंज लेते हैं कि आपको यहाँ पे 10 out of 10 लाने हैं. 10 assertion based questions है. एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. So let's make it for 10 out of 10. Right? 10 out of 10. Done? Dusted? Let's solve some chemical low chat together. Shagde Fateh, guys. Sit with your pen and paper. ठीक है? आराम से solve करना. Okay. What is easier to get into than to get out? आपको पता है ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा फंसते हो. सोच के देखो. What is easier to get into than out of? घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है. मुझे तो जाने देखते हैं कौन कौन निकाल पाता है इस चीज को. बाद में हम आंसर डिस्कस करेंगे एंड यू विल फील लाइक हाँ मैम आप सही कह रही थी, ये तो हमारे साथ रोज होता है. Alright, let's have a look on schedule of the week. So भाइयों बहनों हमने इस हफ्ते NCERT मैराथन करा था of metals and non-metals and super scorer, that means we quiz जो कि हम लोग ने नहीं करा था just because हमारा NCERT मैराथन total 5 hours खिंचा था. So हमने metals and non-metals को literally line by line लिया है, आराम से पढ़ा है, समझा है. And if you want to understand this chapter entirely, एक closure चाहिए आपको तो NCERT मैराथन जरूर देखिएगा. और किसी ने नहीं कहा कि बैठ के 5 घंटे देखो, which is not possible. So 2x speed पे भगाओ and finish up your chapter completely. ठीक है? Then we have completed all equations from chemical reactions and equations from one go, which is a part of your obviously CBSE 2024. तो हमने एक साथ सारे रिएक्शन सारे इक्वेशंस करे हैं जितने आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हम लोग ने करा है आज 12 बजे एंड आई होप यू हैव सीन दिस क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट एंड कर दिया है चैप्टर का क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक था आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स व्हिच इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक बट इट्स इंपॉर्टेंट. यहाँ से मेजरली सपोनिफिकेशन रिएक्शन काफी जरूरी है. डिटर्जेंट के लिए मैंने क्वेश्चन बताया आपको जो कि हर साल पूछा जाता है. So you, if by any chance if you have missed this, so go and have a look there as well. So starting up with your first question on positive note, let's begin. I hope you all are born ready. Come on guys. 1 mark each question. 10 questions. आपको 10 में से 10 लाने हैं. करें शुरू करें. Okay. Assertion कहता है plaster of Paris is used by doctors for setting fractured bones. Reason कहता है because when plaster of Paris is mixed with water and applied around fractured limbs, it sets into a hard mass. तो आप assertion और reason को अलग अलग statement के तौर पे पढ़ो. क्या दोनों statement sense बना रहे हैं, क्या वो सही है. If false, then आपके पास दो option का choice है. If true, in that case also you have two choices A and B. अगर सही है तो क्या reason is a correct explanation for the given assertion or not? बुझे तो जाने. Come on guys. Plaster of Paris, which is CaSO4 dot half H2 जहाँ पे half water crystallization है, plaster of Paris को doctors use करते हैं to set the fractured bones. When plaster of Paris is mixed with water, मतलब अगर plaster of Paris को पानी के साथ mix कर दें 1.5 or 3/2 water molecule के साथ, so that converts into gypsum guys. And gypsum क्या है? It's a white hard solid mass. Absolutely right. So it is option A. अगर आपका answer option A है, perfect. That's good. That's a kickstart for a session. So first one is correct one. Assertion reason दोनों सही है as well as reason is a correct explanation to the given assertion. So यहाँ पर आपको मिलते हैं 1 mark. चले आगे. All right, guys. Let's move on to our next question. Question on screen. While dissolving an acid or base in water,
acid must always be added slowly to water with constant stirring. तो आप लोग ने ये बात पढ़ी थी कि एसिड को पानी में डाले कि पानी को एसिड में डाले, है ना? बस उसी को दिमाग में रखना है. रीजन कह रहा है क्योंकि dissolving an acid on a base in water is highly exothermic reaction. सोचो, पढ़ो, दोनों को अलग अलग से पढ़ो. While dissolving an acid or base in water, the acid must always be added slowly to water with constant stirring. देखो, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. It is true, absolutely true. Dissolving an acid on a base or a base in water is highly exothermic reaction. ये भी बात सही है. इसीलिए बोला जाता है कि एसिड और या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस को हम लोग धीरे धीरे पानी में डालते हैं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, उसको कांस्टेंट स्टर करते रहते हैं, एंड देन वी पोर इनटू द बीकर. So yes, it is option A. Absolutely bang on answer. So I hope आप लोग ने option A मार्क करा होगा. अभी तक 2 out of 2 होने चाहिए आप लोगों के. So this was your question number 2 and यहाँ पर आप गेन करते हैं 1 मार्क अगर आपने option A मार्क करा है. Cool. Okay, cool. Moving on to our next question. Session के last में जाके मुझे जरूर बताना 10 out of 10 आया या कहीं झोल झाल करा है. ठीक है? Honestly अपने मार्क्स जरूर शेयर करना मेरे साथ. Next question. Assertion कह रहा है HCl produces hydronium ions and chloride ion in aqueous solution. Reason कह रहा है in presence of water, bases produce H plus ion. Okay, right? बताइए क्या लगता है? HCl का अगर हम aqueous solution की बात करें तो definitely they will going to dissociate into hydronium and chloride ion. ये बात बिल्कुल सत्य वचन है. aqueous solution में in presence of water bases produce H plus ion. Ouch! Bases produce hydroxide ion जैसे कि NaOH है ना, इसमें से OH निकलेगा. So in that case सबका reason is a false statement whereas A is true. इस बात पर होता है C as your correct answer. समझ लो, सब बढ़िया चल रहा है. ये आपके लिए है 1 मार्क का क्वेश्चन. ऑप्शन सी इज परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस सेशन एंड यू वांट मोर लाइक दिस तो जरूर से लाइक बटन जरूर दबाना. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन स्टमक. बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन. ओके, देखते हैं जी, देखते हैं क्या आएगा. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3. क्रिएट्स एसिडिटी इन स्टमक. भाई ये एंटासिड्स के अंदर डाला जाता है. ये एसिडिटी क्रिएट नहीं करता है, ये एसिडिटी कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है. क्योंकि बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन तो ये ट्रू है. असर्शन इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट. इसीलिए बनता है ऑप्शन डी एज योर answer. So option D is chocolate fate. Good job. Very good. So that was for 1 mark. सब कैलकुलेट कर रहे हैं ना अपने मार्क्स. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन कहता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. पहली चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बॉस? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, अच्छा अगर मैंने वो बता दिया तो तुम्हें सब पता चलेगा. आई हैव टू जिप इट. कम ऑन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो. रीजन कहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. कम ऑन. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2, है ना? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं यहाँ पे? 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिग्निफिकेंस होता है दैट दे प्रोवाइड कलर एंड क्रिस्टल लुक टू अ कंपाउंड, इजंट इट? लेकिन ये कई लोग गलत मान लेते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो कंपाउंड है, जो क्रिस्टल्स है, वो वेट होते हैं, दे आर मॉइस्चर्ड. बट नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये कॉपर सल्फेट के अराउंड वीक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं. राइट? सो दीज आर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हिच इज फिक्स्ड नंबर या डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू द कंपाउंड बाय अ लूज केमिकल बॉन्डिंग, लूज केमिकल कॉम्बिनेशन से जुड़े हैं.
So reason as a statement बिल्कुल ठीक है, but water crystallization does not make it wet, which is a false thingy. इसीलिए option D is absolutely perfect. Clear है? Okay. I hope you have marked it right. Option D is your farty answer. Moving on. Are you ready? Ready, steady, and go. Next question. Assertion कहता है the aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character. Aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character. Reason कहता है क्योंकि aqueous solution of glucose and alcohol do not give H plus ion. क्या लगता है बॉस? देखो आपके पास एक क्वेश्चन में पूछा गया है, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, so why will they? जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, बोला जाता है they should dissociate into ions and they should produce or conduct electricity, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, दे आर न्यूट्रल गाइस. ना ही इसका pH लेस देन 7 होगा, ना pH मोर देन 7, इनका pH होता है 7. दे आर न्यूट्रल, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो अल्कोहल का सोल्यूशन हो. सो they were not going to produce H plus ion, true, and they will not having any acidic character, that is also true. एक्सप्लेनेशन भी एकदम कड़क है बॉस, सो इसके लिए ऑप्शन ए इज योर परफेक्ट आंसर. क्या रे बॉस? चमका, एकदम चमका. ओके, ऑलराइट. विद अ बिग स्माइल and confidence, let's move on to our next question. Assertion as a statement कहता है weak acids have low electrical conductivity. Reason कहता है strong acids and weak acids have equal concentration of H plus ions in their solution. Do you think so? तो देखो, जब आप लोग pH की शुरुआत करते हो तो आप लोग पढ़ते हो strength of acids and bases, है ना? Strength of acids and bases में आप क्या पढ़ते हो कि या तो acids या base strong होते हैं या weak होते हैं. अब ये स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे डिसाइड होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कितने हाइड्रोजन आयंस निकाल रहे हो. स्ट्रॉन्ग मतलब 100% आयोनाइजेशन होगा तब जाके वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, राइट. वीक तब होता है जब उसपे पार्शियल आयोनाइजेशन होता है. पार्शियल बोले तो कुछ तो आयंस में फॉर्म होंगे एंड कुछ मॉलिक्यूल्स में रहेंगे एज सच. जैसे कि अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो इट इज कंसिडर्ड टू बी एज वीक एसिड. किस बेसिस पे वीक एसिड है? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल आयोनाइजेशन होके कुछ एसिटिक एसिड टूटते हैं एसिटिक आयन के अंदर एंड हाइड्रोनियम आयन, और कुछ होते हैं जो कि सोल्यूशन में एसिटिक एसिड के फॉर्म में ही रहते हैं, वो टूटते ही नहीं है. तो इसीलिए ये वीक एसिड है. वीक एसिड होने की वजह से हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डेफिनेटली कम होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग. सो जब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इनमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, दैट्स ट्रू. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. तो इस वजह से आपका आंसर होता है ऑप्शन सी. समझला? आई होप आपने सही मार्क करा होगा. ऑप्शन सी इज योर परफेक्ट आंसर. इफ यस गाइस, कंग्रेचुलेशंस, यू डिड अ गुड क्वेश्चन. आपने काफी अच्छा सॉलिड क्वेश्चन सॉल्व करा है, सो टैप योर बैक एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. नेक्स्ट, on positive note, chocolate for tin, let's solve this guys. pH is equals to 7 signifies pure water. pH of acetic acid is greater than 7. अब the public, क्या लगता है बॉस? pH equals to 7 प्योर वाटर है. pH का हम स्केल देखते हैं which works from 0 to 14. बीच में आता है 7. अगर 0 से 7 pH लाई करता है that means it is acidic. और अगर pH level value 7 to 14 होता है then it would be basic or alkaline. And if pH is equals to 7 तो ये होंगे neutral. प्योर वाटर एब्सोल्युटली pH is equals to 7, ये बात सच है. एसिटिक एसिड, एसिड तो एसिड का मतलब pH वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 7, इट शुड बी लेस देन 7. इसीलिए आपका रीजन गलत है फ्रॉम एपिग्लॉटिस. So yes, it is false and option C is your fatty answer. Okay guys, so I hope यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा होगा, मस्त चल रहा होगा. So now it's time for us to move on to our next question. Question on screen.
आराम से पढ़ो। फिनोफ्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन को हम इन शॉर्ट पीएच भी लिखते हैं, बट प्लीज इस शॉर्ट फॉर्म का यूज कृपया करके ग्रेड 10 में मत करना। ग्रेड 11 12 के अंदर जाके जितना मर्जी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना, बट कोशिश करो बोर्ड के अंदर पूरा स्पेलिंग लिख कर आओ, ठीक है। पीएच इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन gives different color in acidic and basic medium. तो आप लोग जब इंडिकेटर्स पढ़ते हो, इन इंडिकेटर्स व्हाट डू यू लर्न? तरह तरह के इंडिकेटर्स पढ़े आप लोग ने। एक होता है कलर बेस्ड और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी, राइट। कलर बेस्ड के अंदर आप लोग दो तरह के पढ़ते हैं, दैट इज सिंथेटिक मींस मैन मेड एंड अदर वन इज नेचुरल। अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करते हैं तो वो कलर एसिड बेस इंडिकेटर में आता है एंड दैट इज वन ऑफ द सिंथेटिक एंड मैनमेड एग्जांपल। मैनमेड वाला इंडिकेटर है, बट हाँ जी एसिड बेस इंडिकेटर है। और it do give different colors in acidic and basic medium, इसीलिए तो वो हमें इंडिकेट कर पाता है, बता पाता है कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है सब्सटेंस, राइट बॉस। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को किसी बेस में ऐड करें तो क्या कलर आएगा? मुझे तो जाने, कम ऑन गाइस, क्या कलर आएगा इफ यू ऐड फिनोफ्थलीन इनटू अ बेसिक सब्सटेंस? आई विश मेरे पास यहाँ पिंक कलर का पेन होता, बट yes, that will turn into a beautiful pink color. Beautiful pink color में turn होता है, and immediately. Okay, so yes, absolutely, this is option A. ये दोनों statement correct है, as well as given reason is फाटाफाटी, एकदम कड़क है for given assertion. समझला? समझला? Give me a thumbs up in chat box and यार कभी हाजिरी दिया करो. Next question on your screen. Assertion. केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 और रीजन कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे पता है आपकी काफी सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी। पहली, क्या आपको क्या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता है? दूसरा, क्या आपको ब्लीचिंग पाउडर का प्रेपरेशन पता है? सो काफी कुछ इस क्वेश्चन से टेस्ट होगा, आप लोगों का स्किल्स टेस्ट हो जाएंगे। सो दिस इज अ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हो सकता है कि आपके पेपर में आंसर्स आ जाए, ध्यान रखना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इज दैट द फॉर्मूला? यस इट इज द फॉर्मूला, तो ये बिल्कुल सही है। Calcium oxide reacts with chlorine to form bleaching powder. Ouch! No, that's false. Dry slaked lime, है ना? ड्राई स्लेट लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ये क्लोरीन कहाँ से आया? ये क्लोरीन आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस से, ठीक है। इसीलिए तो सोडियम क्लोराइड वाज इनडायरेक्टली बीइंग यूज्ड हियर। सोडियम क्लोराइड का रॉ मटेरियल एज ए यूज कर रहे हैं ना हम लोग दूसरे सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो क्लोरीन कहाँ से मिला था? क्लोर एल्कली प्रोसेस से। वो क्लोरीन को हमने यहाँ ड्राई स्लेट लाइम के साथ अटैच कराया, दैट गिव्स यू CaOCl2, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी वजह से ऑप्शन सी इज योर फाटाफाटी आंसर। मजा आया? आई होप आप लोग को काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे एंड क्वेश्चंस वर इम्पोर्टेंट टू। टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजन आपने करा है एंड होमवर्क एक और क्वेश्चन है यार, बोनस क्वेश्चन मिल रहा है। असर्शन कहता है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। रीजन कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। You say, क्या बोली पब्लिक? Do let me know your answers in the chat box, ठीक है? जरूर से अपने आंसर बताना chat box में whether you go for A, B, C or D. And आपने कितने मार्क्स गेन करे? 10 out of 10? I'm pretty much sure. I wish you gain 10 out of 10. अगर कम भी करे हैं तो it's okay. जो गलती करनी है यही करो, समझो और इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? अब बात करते हैं रिडल के जवाब की। यू विल फील लाइक कि हाँ ये हम ही हैं। What is easier to get into than to get out? Trouble.
जिसमें तुम लोग शायद रोज ही पढ़ते होगे, स्पेशली इन स्कूल। घुसना आसान है बट उससे निकलना मुश्किल है। बंक करते हुए पकड़े गए, होमवर्क नहीं करा, घर पे कुछ शैतानी कर दी, तो दैट्स अ ट्रबल जो तुम लोग अपने साथ सर पे लेकर घूमते हो कि भाई हमें ट्रबल में डाल दो, हम बहुत खुश रहेंगे, है ना। हर एक स्टूडेंट के साथ ट्रबल गेट अलोंग इन देयर लाइफ। सो ट्राई नॉट टू गेट इनटू ट्रबल, स्पेशली जब आप लोग ग्रेड 10 में है, इंटरनल मार्क्स आप लोगों के स्कूल के हाथ में होते हैं। तो कोशिश करना कि ट्रबल में ना फंसो, मस्ती करो बट डू नॉट गेट कॉट, पकड़े मत जाना। All right, guys. I hope the session helps you. And if you like the session, do press like button and subscribe it and share it with your friends. Thank you so much, guys. That was it from my side. फिर मिलेंगे चलते चलते. This is me, Rajda. She was signing off. Thank you. Take care. Stay safe. Always. Bye.